Good morning, students. Uh, so till now we have already discussed the sparse matrix, the representation of the sparse matrix, and the operations performed on the sparse matrix we have already discussed. So there are two operations we have discussed. One is the transpose method, one is the transpose operation, and second one is the addition of the transpose matrix. So as per the part of your syllabus of RTU, we have to do only the representation of the sparse matrix. But if you want to take the challenge, then you can implement the sparse matrix in C also, just to play around. So that is a very good. If you able to develop the logic of the sparse matrix, and I hope that you must have a good grip on the C language. Fine. So that is the part. Otherwise, as far as your assignment is concerned, as a regular assignment is concerned, you have to implement the representation of the sparse matrix of the multiple operation of the multiply operation also. So you have to take the two matrix as an input and you have to multiply these two matrix and you have to give the output. So that will be the part of your assignment. I have not given you in the Google Classroom. I'll make sure that I'll make one section for this assignment also. So now in today's lecture, I have received one comment from one of your students that I have not covered the linked list operations, the operations on the linked list. So it shows that you are keep watching my lectures. So thank you for interrupting me, and thank you for what we can say that thank you for reminding me. Fine. So secondly, I want to tell you that don't give your attendance for the attendance sake. Fine. And secondly, I will not entertaining the late attendance also. So just be in time. So when I am publishing the lectures in time, so that will be your responsibility to watch the video and then mark your attendance. Just for sake of the mark of attendance, don't do that. Okay, because I can see that my views देख रहा हूँ in the lectures that there are those views are not equal to the number of students of your class. So I keep recommending you that keep on watching the lecture, and then once you watch the lecture, then only you mark your attendance. So make sure of that. And I am not entertaining any late attendance. Okay, from past 1 month. So that will be only, that scheme was only for 1 month only. That is for on the July month. In August month and in September month, I am not entertaining the late attendance. So now let's begin with the lecture. So in today's lecture, we'll again go back for the concept of the linked list word. And here in this lecture, we'll be discussing the operations performed on the linked list. So these are the following operations performed on the linked list. Number one is the traversal of the linked list. Second one is the adding the node of the linked list. And here the addition of the linked list can be performed in the three different way. We can add the node at the beginning of the linked list also. We can add the node at the middle of the linked list also, and we can add the node at the last of the linked list also. ठीक है, तो हम बिगनिंग में भी ऐड कर सकते हैं, मिडिल में भी ऐड कर सकते हैं और लास्ट में भी लिंक लिस्ट के ऐड कर सकते हैं. तो उन तीनों ऑपरेशंस में किस तरीके से लॉजिक होगा वो हम डिस्कस करेंगे. उसी तरीके से डिलीशन भी हम तीन तरीके से कर सकते हैं. डिलीशन एट द बिगनिंग, डिलीशन एट द मिडिल एंड डिलीशन फ्रॉम द लास्ट. ठीक है, तो these are the things. Pardon my English here. From the beginning, from the middle, and from the last होना चाहिए था. So this is the thing. So these are the three operations we'll be discussing in this lecture. So in the first part of the lecture, we'll be discussing the traversing and the adding. And in the next part of this lecture, we'll be discussing the deletion part. And we will see the whole code in the simulator also, in the C compiler also. How our program works. Fine. So before going to that operation, the traversal and the other thing, first we will have to make sure that what are the nodes available in that. So there are two nodes, two important points to remember. One is the head pointer and second is the next pointer. The head pointer points to the first node of the linked list. तो एक तो head होगा, एक next होगा.
हेड जो होगा वो मेरा फर्स्ट नोड को रिप्रेजेंट करेगा और नेक्स्ट पॉइंटर पॉइंट्स टू द लास्ट नोड विच इज नल. सो इफ द नेक्स्ट करंट नोड इज नल, वी हैव रीच्ड द एंड ऑफ द लिंक लिस्ट. सो दो तरीके के हमारे पास नोड्स होंगे, एक तो हेड होगा, दूसरा नेक्स्ट होगा. नेक्स्ट जो होगा एक मेरा पॉइंटर वेरिएबल होगा जो कि मेरी नेक्स्ट लास्ट नोड को रिप्रेजेंट करेगा. तो जैसे ही मेरा नल पे पहुंच जाएगा, दैट मीन्स कि मैं लास्ट अपने एंड ऑफ द लिंक लिस्ट पे पहुंच चुका हूँ. इन ऑल द एग्जाम्पल वी एज्यूम दैट द लिंक लिस्ट हैज 3 नोड्स. ठीक है, हम अभी सिर्फ 3 नोड्स की बात करेंगे, 1, 2 एंड 3. तो इस एग्जाम्पल्स जो भी हम डिस्कस करेंगे उनमें अपन 3 ही नोड्स लेंगे और उन 3 नोड्स के अंदर अपन ऑपरेशंस करेंगे. So before going further, first of all, I want to tell you about the structure of the node. ठीक है, अगर जिन्होंने नहीं देखा है, नहीं जानते हैं इसके बारे में, तो मैं कुछ नहीं कर सकता. आप जाएं और मेरे प्रीवियस लेक्चर्स को देखें, नहीं तो वेबसाइट को कंसल्ट करें. So this is the structure of the node. ठीक है, उसमें मैंने दो तरह के नोड्स लिए हैं, दो तरह का डेटा लिया है. एक तो मैंने लिया है डेटा जो कि इंटीजर टाइप का होगा, और एक मैंने वेरिएबल लिया है, पॉइंटर वेरिएबल लिया है जो कि स्ट्रक्ट नोड का होगा. स्ट्रक्ट नोड भी एक मेरा डेटा टाइप बन गया है, ये भी मेरा डेटा टाइप है और ये भी मेरा डेटा टाइप है. तो ये दोनों टाइप है, ये इंटीजर टाइप का है और ये स्ट्रक्ट नोड टाइप का है. फाइन. अब सबसे पहले हम ऑपरेशन की बात करेंगे, ट्रैवर्सिंग द लिंक लिस्ट. अब ट्रैवर्सिंग का क्या मतलब होता है, सबसे पहले समझ लेते हैं. ट्रैवर्सिंग का मतलब कुछ नहीं होता, ट्रैवल करना. जब हमको लिंक लिस्ट में ट्रैवल करना होता है उसको हम बोलते हैं ट्रैवर्सिंग द लिंक लिस्ट. तो बेसिकली अगर मैं ट्रैवल कर रहा हूं तो मेरा आउटपुट क्या आना चाहिए, सारे कंटेंट्स जो भी लिंक लिस्ट के अंदर है मेरे वो आने चाहिए. तो अगर मैं इस एग्जांपल की बात करूं जो हम कंसीडर कर रहे हैं, उसके अंदर हम 3 नोट्स ले रहे हैं. तो अगर मैं ट्रैवर्सिंग करूंगा तो ये तीनों नोट्स मेरे को आउटपुट में दिखने चाहिए. तो अगर मान लीजिए मैं पहले नोट की वैल्यू 1 रखता हूँ, अगर दूसरे नोट की वैल्यू 2 रखता हूँ, तीसरे नोट की वैल्यू 3 रखता हूँ, तो जब मैं इसका आउटपुट देखूंगा तो मेरा आउटपुट आना चाहिए 1, 2 एंड 3. तो ट्रैवर्सिंग इज नथिंग बट द डिस्प्लेइंग ऑफ ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द लिंक लिस्ट. So basically traversing is nothing but displaying the content of the linked list. It is very simple. We keep moving the temp node. अब हम इसमें क्या लेंगे, temporary node लेंगे to the next node and displays its content. When temp is null, we know that we have reached the end of the linked list, so we get out of the loop. तो ये दो हमारे इसके अंदर कंसेप्ट हैं, जो लॉजिक है वही हम लोगों ने इस कोड में इम्प्लीमेंट किया है. यहाँ पे एक हमने क्या लिया है, स्ट्रक्ट नोड, एक पॉइंटर टाइप वेरिएबल लिया है. ठीक है, जिसको हेड वो है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है. तो मैंने आपको यहाँ बता चुका हूँ हेड क्या होगा. हेड मेरा पहला नोड होगा. ठीक है, जिसके अंदर डेटा भी होगा और उसके अंदर पॉइंटर भी होगा. उसके बाद मेरे को क्या करना है, प्रिंट द लिस्ट एलिमेंट आर. वो मेरे को प्रिंट कब तक कराते रहना है, व्हाइल टेम्प इज नॉट इक्वल टू द नल. जब तक ये टेम्परेचर, नॉट टेम्परेचर इज अ टेम्परेरी वेरिएबल, ये जो टेम्परेरी पॉइंटर वेरिएबल है जब तक नल नहीं हो जाता तब तक ये कंडीशन जो होगी ट्रू होती रहेगी और ये चलता रहेगा. और जैसे ये कंडीशन फॉल्स होगी, मतलब जैसे ये कंडीशन मेरी ट्रू होगी, ये इस लूप से बाहर आ जाएगा. तो टेम्प इज नॉट इक्वल टू नल, तो कंडीशन इज, अभी वो नल नहीं है, दैट मीन्स कंडीशन इज ट्रू. तो यहाँ पे प्रिंट एफ क्या करना है, मेरे को टेम्प को डेटा दे देना है, मतलब जो टेम्परेरी वेरिएबल है उस पर डेटा चला जाएगा और जो मेरा नेक्स्ट पॉइंटर होगा वो भी किस पे आ जाएगा, टेम्परेरी वेरिएबल पे आ जाएगा. तो बेसिकली इसमें क्या हो रहा है, मैंने आपको बताया था नोड के दो तरीके के पार्ट होते हैं. मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ. नोड में दो तरीके का पार्ट होता है, एक तो होता है डेटा और दूसरा होता है नेक्स्ट, जो कि मेरे को बताएगा कौन सा, ये क्या बताएगा, ये पॉइंटर वेरिएबल है, ये मेरे नेक्स्ट नोड की लोकेशन को बताएगा. ठीक है, अगर यहाँ पे नेक्स्ट नोड पे कुछ भी नहीं होगा तो यहाँ पे नल लिखा हुआ होगा, ये आप लोगों को पता ही है. तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इस स्टेटमेंट से क्या कर रहा हूँ मैं, जो ये वाला स्टेटमेंट है ये क्या करेगा, टेम्परेरी वेरिएबल के अंदर डेटा को फीड कर देगा, कुछ नहीं करना इसको. दूसरा जो ये वाला स्टेटमेंट है, वो स्टेटमेंट क्या करेगा, ये जो नेक्स्ट पॉइंटर है किसको दे देगा, टेम्प वेरिएबल को ही दे देगा. तो मैंने एक नया वेरिएबल बनाया था टेम्परेरी वेरिएबल, जो कि क्या काम करेगा, मेरा लिस्ट को डिस्प्ले करेगा. लिस्ट को डिस्प्ले करेगा मतलब के जो एलिमेंट्स है मेरे इसके अंदर उसको डिस्प्ले करेगा. तो टेम्प के अंदर मेरा डेटा पहले स्टोर हो जाएगा और मेरा नेक्स्ट टेम्परेचर जो नेक्स्ट जो पॉइंटर वेरिएबल होगा वो स्टोर हो जाएगा. So now let's suppose के इस नोड की वैल्यू है 1, इस नोड की वैल्यू है 2 और यहाँ पे एक और नोड में बना देता हूँ और उसकी वैल्यू है 3 और उसके बाद ये यहाँ पे नल आ जाता है. तो यहाँ पे क्या आएगा आउटपुट में, मेरे आउटपुट में सबसे पहले आ जाएगा 1 और जैसी नेक्स्ट लोकेशन मान लो इसकी 1024 है और इसकी 1028 है.
तो यहाँ पे तो होगा 1024 नेक्स्ट पे, तो अब टेम्प वेरिएबल की वैल्यू क्या हो जाएगी 1024, दैट मीन्स क्या वो इस नोड को रिप्रेजेंट करेगा, तो इसके आउटपुट में आ जाएगा 2। और फिर तीसरे वाले में जब 1028 है तो ये तीसरा नोड आ जाएगा, और तीसरे नोड का जब वैल्यू जो होगी 3, तो अब मेरे वैल्यू में डिस्प्ले हो जाएगा 1, 2 एंड 3। तो इस तरीके से जो मेरी 1, 2, 3 वैल्यू होगी वो ट्रैवर्सिंग में शो हो जाएगी। अब मैं बात करूंगा एडिशन की, तो एडिशन मेरे को 3 तरीके से करना है। पहले मैं बात करूंगा एट द बिगनिंग, तो सबसे पहले क्या करूंगा मैं, एलोकेट द मेमोरी ऑफ द न्यू नोड, स्टोर डेटा, चेंज नेक्स्ट ऑफ न्यू नोड टू पॉइंट टू हेड एंड चेंज हेड टू पॉइंट टू रिसेंट क्रिएटेड नोड। अब इसके अंदर मेरे को क्या करना है, सबसे पहले मेरे को एक एलोकेट करनी है न्यू नोड को मेमोरी, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक पॉइंटर वेरिएबल लिया है, तो मैं यहाँ पे एक पॉइंटर वेरिएबल ले लूंगा जिसका नाम होगा न्यू नोड, ठीक है। और इस न्यू नोड में मैं क्या कर रहा हूँ, मैलॉक स्ट्रक्ट ऑफ स्ट्रक्ट नोड। ये क्या करेगा, डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट करेगा, किसको करेगा, न्यू नोड को। तो यहाँ पे मैंने ले लिया न्यू नोड। अब न्यू नोड में भी मेरे 2 पार्ट होंगे, बट ऑब्वियस है। तो पहला मेरा पार्ट होगा डेटा, डेटा में लेट सपोज मैंने डाल दिया 4, और इसके बाद मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, डेटा में क्या, नेक्स्ट में मैंने क्या कर दिया, बट ऑब्वियस है कि जब कोई एक लिंक लिस्ट होगी उसका कोई एक हेडर होगा, ठीक है, और उस हेडर की कोई लोकेशन होगी, लेट सपोज 1024 है, तो मैं 1024 क्या कर दूंगा, यहाँ पे डाल दूंगा, इसको पॉइंट कराने लग जाऊंगा। तो इससे क्या हुआ स्टूडेंट्स, इससे ये हुआ कि जो ये मेरा हेड नोड था, अब मेरा हेड नोड ये ना रह के क्या बन गया है, ये वाला बन गया है, ठीक है। तो अब ये मेरा हेड नोड हो गया, और यही मेरा पर्पस है, मेरे को नोड को बिगनिंग में ऐड करना है। तो अब ये मेरा बिगनिंग नोड हो गया, और ये मेरा क्या हो जाएगा, सेकंड नोड हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, न्यू नोड इक्वल्स टू हेड। न्यू नोड इक्वल्स टू हेड मतलब इसकी मान लो पोजीशन होगी मेरी, मान लो होती है 3024, ठीक है, और इसकी मेरी पोजीशन है 1024, तो 1024 तो यहाँ पे आ गया, और 3024 क्या होगा, 3024 इसको एलोकेट हो जाएगा, मतलब ये 3024 यहाँ पे आ जाएगा, और 3024 जो होगा इसको एलोकेट हो जाएगा। तो इस तरीके से जो मेरा पहला नोड, मेरा जो ये न्यू नोड था वो मेरा पहला नोड बन जाएगा। तो न्यू नोड का जो भी डेटा होगा और जो इसका पॉइंटर वेरिएबल हो जाएगा वो क्या बन जाएगा, वो हेड बन जाएगा, ठीक है। सॉरी 1024 इसको एलोकेट नहीं होगा, ये जो हेड जो मेरा वेरिएबल है, जो हेड जो मेरा वेरिएबल टाइप था वो अब क्या बन जाएगा, ये वाला बन जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली क्या करा मैंने, जो हेड का पॉइंटर था वो इसके नेक्स्ट पॉइंटर से मैंने लोकेट कर दिया, तो मेरा अब हेड वेरिएबल न्यू नोड बन गया है, ना कि ये वाला। तो मेरे को बेसिकली क्या करना था, इस वाले हेड नोड को यहाँ शिफ्ट करना था, मतलब ये जो मेरा हेड नोड था इसको इस वाले हेड नोड पे शिफ्ट करना था, वो मैंने इस स्टेटमेंट से कर दिया। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। सो बाय दिस आई एंड अप दिस लेक्चर। उसके बाद हम आगे किसके पढ़ेंगे, किस तरीके से मिडिल में ऐड किया जाता है, किस तरीके से इसको एंड में ऐड किया जाता है। थैंक यू।